चलो तुम में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन जनरल गाइड करना है। हाँ जी बवनीत, लेट्स स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है सर पॉइंट वाइज जाना। हाँ, जैसे फ्लो में चलते रहो। जो भी स्टार्टिंग से अपना पहले तो अपना शेयर कर दो कि हाँ खुद का जर्नी कैसा रहा, ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रगल्स वगैरह फेस की, राइट, 11th-12th में, वो सारा याद करो, सब शेयर करो। मतलब एक सब तो बेसिक पॉइंट जो जनरली आप सारे मतलब ओके सॉरी हिंदी या पंजाबी पहले एनी लैंग्वेज कोई फर्क नहीं। ओके ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ a much better way to proceed with the subject. Right. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ +1 ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। +1 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਰੱਟ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 10th ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨॉन ਮੈਡ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ IIT ਕਾਫੀ ਗਲਿਮਰੀ ਟਾਈਪ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾइंड ऑफ। तो मतलब ਥੋੜਾ ਏਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ +1 +2 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਮਲੈਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਏਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਏਮ ਰੱਖ ਪਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਰਾਈਟ, ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਏਮ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ
दो टाइप ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ MCQs ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਮਿਹਨਤ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕਈ ਲੋਕੀ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ 11th ਨਹੀਂ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟਸ obviously beneficial कि ਆਪਾਂ टाइम ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ अर्ली ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਜ਼ ਐਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਘੰਟਾ ਕਿ ਸਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਸਰ ਕੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। NPTEL ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਿਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ the thing is ਕਿ if we join some institute, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ if you are still not comfortable with the teacher's method, then I think you should go for the alternate method. And alternate method actually ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, that is online, right? Online ਇੱਕ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਵਾਂ YouTube, ਰਾਈਟ। YouTube ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੇਜਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਰਾਈਟ। तो वीडियोस इसीलिए तो ट्यूशन लगते हैं, इसीलिए तो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ ट्यूशन ना। सो द अल्टरनेट सोर्स इज गुड, बट इफ यू हैव अ वैलिड एंड गुड सोर्स रेदर देन कि वो सोर्स जो बहुत एक रैंडम मैंने वीडियो सर्च मारा, राइट, और वो रैंडम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा, वो हद से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा मेरा, राइट।
तो वो चीज थोड़ा जिहा किते ना किते गलत चला जाता। आई थिंक सो ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। हाँ मतलब कोई उस चीज ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ आई थिंक मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ There is no ਆਨਲਾਈਨ source. ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਟੀਚਰ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ वेरिफिकेशन कर सकते हैं सोर्स की राइट और वीडियोस की हाँ वो जेन्युइन है या नहीं है राइट कितना ठीक करा रहे हो सकता है गलत भी करा रहे हो राइट क्योंकि स्टूडेंट को तो कुछ पता नहीं ना स्टूडेंट तो लर्न कर रहे हैं राइट सो की सही है की गलत है उन्होंने तो पता नहीं वो गलत भी सीख सकते हैं सही भी सीख सकते हैं राइट गलत गाइडेंस भी हो सकती है सही गाइडेंस भी हो सकती है सो आई थिंक कि फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली शुड बी कि टू ओपन अप विद योर टीचर ठीक एंड उन्होंने सब कुछ शेयर करो इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम एकेडमिक्स ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ ਦ ਟੀਚਰ राइट समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा एक्स्ट्रा कंसेप्ट दी एक्स्ट्रा सॉरी अपना क्वेश्चन सेट दी लोड है राइट व्हाटएवर इट इज कोई और प्रॉब्लम भी है सो टॉक टू योर टीचर नोज यू बेस्ट एंड ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ पूरा साल बहुत वधिया तरीके नाल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझाएगा इट डज नॉट मैटर करंटली ਤੁਹਾਡਾ वेयर डू यू स्टैंड इट डज नॉट मैटर काफी बच्चे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਐਵਰੇਜ 50 60 70 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 80 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨॉट ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ 12th 10th point of view ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬਟ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਈਟ तो उल्टा भी हो सकता सो कहने का पॉइंट यही है कि टीचर पे भरोसा रखो एंड टॉक टू योर टीचर बहुत फ्रेंडली गल करो उन्होंने डिस्कस करो कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है राइट उन्होंने डिस्कस करो उन्होंने प्लानिंग करो कि सर दिस इज माय मोटिव एनू कितना करना चाहिए की किया जा सकता है शॉर्ट टर्म मोटिव क्यों होना चाहिए लॉन्ग टर्म मोटिव क्यों होना चाहिए राइट सो टॉक टू योर टीचर राइट हाँ जी बबली कंटिन्यू मतलब ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੌਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ देयर ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦੈਨ I think somewhere we are wrong. नहीं आ रहा इसीलिए तो सीख रहे हो ना. Exactly नहीं आ रहा इसीलिए तो सीख रहे हैं ऐसा नहीं है कि सीख नहीं पा रहे ऐसा नहीं है टाइम लगता है सीखने में राइट इट टेक्स टाइम और माइंड के अंदर वो जो पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखने में पर्टिकुलरली समझने में एंड समझने के बाद उसका अप्लाई करने में क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि क्वेश्चन सेट अगर जेई का देखूं मैं तो बहुत ज्यादा वास्ट होता है राइट तो उसको अप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को सीखने में एप्लीकेशन सीखने में राइट और क्योंकि चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं राइट तो सबका चैप्टर्स का कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंटरलिंक मिलेगा ही मिलेगा राइट तो जब तक मेरा बेसिक अलजेब्रा वाला पार्ट स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल लूं राइट तो सीक्वेंशियल सीरीज हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गया क्वाड्रेटिक हो गया राइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया राइट ये बेसिक इनइक्वालिटीज हो गया यही जब तक नहीं हुआ होगा राइट तो बेसिक वाले क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में मैं आके अटक जाऊं और वहां पे मैं खुद को जज करूंगा यार कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि व्हेन यू आर लर्निंग डू नॉट जज योरसेल्फ कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ
ठीक है, बस लर्न करो, आपका मोटिव होना चाहिए लर्न करना, लर्न करना, लर्न करना, दैट्स इट। सही डायरेक्शन में जाना, लर्न करना, टीचर से बात करो कि यस मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कंसेप्ट को सही तरीके से लर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, दैट्स इट, दैट शुड बी योर मोटिव। हाँ जी कंटिन्यू। मतलब मोस्टली ते और यार आई थिंक बाकी टेक्निकल चीज़ां ने बाकी ते आई गेस कि वही नोट्स वगैरह बनाना इंपॉर्टेंट है, चीज़ां ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्योंकि स्पेशली मैथ्स ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਵਨ ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟਕਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਟਕਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। So basically it is very important कि क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂ نو ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ मतलब it's okay to be wrong because ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੇਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਇਫ ਚਾਹੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਘੱਟ ਆਣਾ ਵੱਧ ਆਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ, ਤੇ यूनिवर्सिटी लेवल पे बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमारे टाइम पे ही हुआ था, जेई का लेवल अचानक से इतना बढ़ गया था, हम ऐसे थे ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦੋ ਉੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੋ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਲ ਹਿੱਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। As long as it's healthy, it's good, but अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो आई डोंट थिंक ये अच्छी चीज है। आई थिंक बच्चों पे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करता है, मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसको एज ए पॉजिटिव लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना मैच्योर होते हैं 11th-12th में कि उसको एज ए पॉजिटिव लेके जाए कि हाँ मतलब यू नो अगर कोई मेरा फ्रेंड है जो ज्यादा अच्छे से कर रहा है राइट, तो मेरे को भी वैसा करना चाहिए राइट, खुद को मोटिवेट करना देके, रेदर देन हम आज की सोसाइटी ऐसी है यार कि हम खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं, यार वो इतना कर पा रहा मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ राइट, तो ये कहीं ना कहीं तो मतलब ये हेल्प कम करता है। अच्छे तुम लोग कंपेयर मत करो, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई थिंक योर ओनली ग्रोथ इज दी, पास्ट से कंपेयर करो कि पहले से मैं कितना इंप्रूव हो गया। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज सेम, बिल्कुल खुद की ग्रोथ को मतलब रिलेटिव पॉइंट जो है वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए, तो तुम्हें खुद की ग्रोथ करनी है तो तुम्हें ये देखना कि आज मुझे कितना आता है राइट, कल को मेरे को कितना आता है, तो क्या मैंने कुछ लर्न किया है, कल से बेटर बना हूं मैं राइट। सो आई थिंक दैट शुड बी आवर मोटिव रेदर देन कि उसके कंपैरिजन में किसी और रैंडम पर्सन के कंपैरिजन में राइट। अब ऑब्वियसली में जेई 1 का जो रैंक होल्डर है उसके कंपैरिजन में तो यू नो हम कुछ भी नहीं है राइट, तो हम वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे राइट। लेकिन जो जेई मेंस क्या बोर्ड में भी क्लियर नहीं कर पा रहा राइट, उसमें भी 40% आ रहा है, उसके कंपैरिजन तो हम बहुत अच्छे हैं, तो हम अगेन मोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, खुद के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, खुद की औकात बढ़ाओ रेदर देन कि मैं दूसरों को देख रहा हूँ राइट। ये तो डेफिनेटली पॉइंट है, डेफिनेटली। ठीक हाँ जी कंटिन्यू। मतलब ये काफी आइडियलिस्टिक में भी साउंड करे तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ,
मतलब राइट राइट कोशिश होनी चाहिए कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आया that friend should come and help you understand the concept. तो मतलब थोड़ा फ्रेंड सर्कल चेंज करा लो मैं ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ हेल्दी ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ हैबिट है। ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 11 12 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ तो ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੇਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂड्स ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਾਇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਬਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਐਂਡ क्लास आफ्टर द क्लास 10-15 मिनट उत्ते खड़े होके गल्लां वगैरह करनियां राइट टाइम पास वगैरह करना राइट ते एक दो दिन थोड़ा जिहा होया एंड देन सडनली उन्हें कहा कि यार चल मॉडल टाउन चलते गेड़ी मारन राइट मैनू थोड़ा जिहा अजीब लगा मैं कहा यार नहीं दैट इज नॉट माई मोटिव ठीक है मेरा मोटिव नहीं है मेरा मोटिव ट्यूशन से आना कुछ और है नाउ आई एम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन सो बेसिकली यू हैव द पावर टू डिसाइड कि केड़ा फ्रेंड जिहड़ा है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਸੇ नो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है यू हैव टू लर्न टू से नो मैं उन्होंने उसी टाइम मना किया मैं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा ठीक मतलब ठीक है मैं 10 मिनट तेरे नाल खड़ा हो जाऊंगा दैट इज गुड फॉर मी मतलब दैट इज नॉट हार्मफुल एटलीस्ट राइट बट हाँ जाके किते एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा टाइम पास करना गेड़ियां मारना मैं क्या नहीं यार that is not the thing kind of thing कि ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਐਚੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਰਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ 11 12 ਦਾ ਏਮ ਬਣਾਇਆ when I was in 12th ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ 11th ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 12th ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 11th ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 3-4 ਮੰਥਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 3-4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 11th ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 12th ਵੀ ਕੀਤੀ 12th ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ 11th ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਰਾਈਟ मैं उन्होंने ना भी किया मैं उन्होंने हाँ भी किया राइट इट इज अप टू मी मैं किहड़े फ्रेंड नु चूज करना है किहड़े फ्रेंड नु चूज नहीं करना एंड ट्रस्ट मी आफ्टर बेसिकली 12th जिन्ने भी साडे 11 12 दे दोस्त हुंदे ने बहुत घट क्योंकि आप सारे अपनी अपनी लाइफ दे विच बिजी हो जाते हैं बहुत घट हुंदे ने जिहड़े कांटेक्ट च रहिंदे ने जो हुंदे भी ने तो बहुत घट टाइम लई हुंदे ने कहने दा मतलब है राइट सो इट डज नॉट मैटर फ्रेंडशिप वगैरह देखना आई थिंक साडा मोटिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਟੌਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੱਖਣਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ राइट कंटिन्यू तो जस्ट बीइंग की थोड़ी प्रायोरिटाइज करो बेटर अपने स्टडीज एंड मतलब देखो एट दिस एज ਤੁਹਾਡੀ एक्चुअली जॉब बस कर काम सिर्फ इतना है कि ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ मतलब एक्चुअली प्राइमरी जॉब जब अपन कंसीडर करिए ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ 9 to 5 जॉब नहीं कुछ भी इवन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 9 to 5 जॉब कंसीडर कर लो एटलीस्ट 8 आवर्स डिवोट करो उस चीज ਵੱਲ नॉट कंटिन्यूअस इवन मतलब ਤੋੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ 8 ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ मतलब ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਚੁਰ ਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब बेसिकली प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है थोड़ा जज करना स्टार्ट करो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ राइट ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ most of these students right now who have caliber actually ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ caliber ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ caliber ਹੈਗਾ ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ YouTube ਲੈ ਲਓ ਰਾਈਟ PUBG गेम्स हो गया राइट बहुत ज्यादा बच्चे बट अल्टीमेट कैलिबर सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा कैलिबर बहुत ज्यादा दिमाग राइट बट जो ऐसा टाइम वेस्ट करते हैं ना तो स्टडीज जो घट टाइम डिवोट करते हैं ओबवियसली फिर रिजल्ट नहीं मिलता अं डिमोटिवेट हो जाते हैं राइट सो आई थिंक दिस इज अ राइट मूवमेंट वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि
सोशल मीडिया हो गया या गेम्स हो गया, ऐसा ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। I can see myself at the age of 30 35 मैं still PUBG खेल रहा and I'm doing nothing in my life and I'm doing nothing in my life, right? तो आई थिंक गेम्स वगैरह खेड के सोशल मीडिया ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ 30 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਐਟ ਦੀ 10 years down the line, 15 years down the line, I'll be doing nothing but playing games still. That's it, right? I don't think कि ऐसा दा मोटिव होना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ the mistakes that we are trying to do, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਰਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊ these studies 11 12 especially non medical ਦਾ ਕਿ how this is going to change my career, ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰ ਬੇਸਿਕ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟਿਵ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਕੰਟੀਨਿਊ। एक्चुअली कोशिश करो कि ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ आफ्टर 12th, राइट, IITs एंड NITs ਜਾਂ ਆਈਜ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ IISc ਵਗੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 12 ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, बाद में मिलेगा, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਗਿਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਬੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਿਗਰੈਟ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਵਨ ਇਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। I guess that's it. ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ, हाँ any points you want to add? भवनीत ने काफी कुछ तो बोल ही दिया है। लाइक एक चीज जो बहुत 11th 12th हर स्कूल वाले बच्चों में होती है कि उनको लगता है कि पढ़ के पता नहीं किस पे एहसान कर रहे हैं हम ये स्कूल में जा रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सो रहे हैं, ट्यूशन पे आ रहे हैं, ट्यूशन के बाद जाके नोट्स खोले भी नहीं, ठीक है चले गए, बस ये नहीं होता है। मतलब तुम पढ़ के किसी पे भी एहसान नहीं कर रहे हो, पहले तो ये चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सिर्फ 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 अपने लिए कर रहे हो, राइट, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हो ये तुम। इसका फायदा भी तुम्हें होगा, नुकसान भी तुम्हें ही होगा। जितना ज्यादा अभी पुश कर लोगे अपने को, वो लाइक बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो उसके लिए ये कि अपने दिमाग में एक एम मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जो तुम्हें पुश करेगा। सबको गेम खेलना, सोशल मीडिया, सोना सबको अच्छा लगता है, बट उन चीजों के अपार्ट तुम्हें पुश करने के लिए कि नहीं मुझे ये नहीं खेलना है, तुम्हारे पास एक मोटिवेशन होना चाहिए। तुम्हें कोई करियर का या कोई स्ट्रीम का है या तुम्हें कॉलेज का, कुछ भी, बट एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 साल तुम ये देखो, ये जैसे 10th तक अभी पढ़ रहे थे कि हाँ ठीक है पेपरों में पढ़ के हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। +1 में तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग, तुम्हें कितना आता है, कितना समझ आता है, अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन एफर्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारा कैलिबर, जैसे सर बोल रहे हैं बहुत ज्यादा कैलिबर है बच्चों में, पर अगर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तो उस कैलिबर का क्या करोगे? बिल्कुल वो वेस्ट है, टोटली वेस्ट है, टोटली वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। और किसी मतलब तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है ना एट द एंड, किसी का क्या ही जा रहा है। तो लाइक ये जो पढ़ रहे हो ना तुम +1 +2, ये बहुत 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 सेल्फिश एक्ट है। पहले तो ये समझ लो कि ये तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तो अगर तुम अपने लिए मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो फिर
क्या ही कोई बोलेगा तुम्हें, जो भी बिल्कुल। तुम तो लाइफ में कोई और कैसे मेहनत करेगा तुम्हारे लिए? पहली बात तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी एग्जैक्टली पड़ेगी। कोई तुम्हारे लिए क्यों एफर्ट डालेगा जब तुम ही आगे से नहीं डाल रहे हो? बिल्कुल। तो खुद सोचो तुम्हें ना जाके भाई। सर को बोलना पड़ेगा कि मुझे ये एग्जैक्टली, चाहिए या मुझे ये करो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। वो आगे से उतना ही एफर्ट डालेंगे। तुम चिलो तो फिर उनको भी क्या है, वो भी चिल जाएंगे। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम लोग आगे से जाके, मैं करती थी, मैं अलग से इतने ज्यादा टेस्ट दिया सर को, मैं खुद जाके बैठ जाती थी, मेरा ये टेस्ट ले लो, ये टेस्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम आगे से एफर्ट डालो। और मतलब एफर्ट ठीक है, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग होती है, बच्चे प्लानिंग नहीं करते हैं कि लाइक बस रैंडमली ठीक है पढ़ रहे हैं किताब उठा के, आज ये थोड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली पढ़ ली, आज थोड़ा ये ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म गोल सेट करो कि ठीक है मेरे को, अब जैसे +1 में तुम कोशिश, अभी तुम्हारा काफी डिस्टर्ब चल रहा है, पता नहीं सिलेबस का क्या होगा क्या नहीं, बट स्टिल तुम लोगों के पास ये होना चाहिए कि जो फुल सिलेबस होता है 11th का, क्योंकि वो जेई में तो आएगा, हो सकता है तुम्हारे बोर्ड में ना आए, लेकिन जेई में सब आएगा। तो तुम्हारा जैसे 11th का गोल सेट करो कि हाँ मुझे ये सारा खत्म करना ही है, ये नहीं कि स्कूल का नहीं है तो चिल है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें उतनी ज्यादा मुश्किल होगी 12th में जाके। मतलब तुम +1 में तुम्हारे पास 2 साल है, बहुत ज्यादा होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। राइट। तो ये लॉन्ग टर्म और फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो, ठीक है बाय द एंड ऑफ 1 मंथ मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, उसको और डिवाइड करो डेली गोल्स पे। एट द एंड ऑफ डे तुम्हें पूछना चाहिए खुद को कि हाँ आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया या क्या नहीं किया, या सिर्फ मैंने आज फेसबुक या यही चलाया। बिल्कुल। मतलब ये सब तो छोड़ ही दो, 2 साल कुछ नहीं मिलना है, मतलब 2 मिनट के क्या मीम्स देख लोगे, क्या कर लोगे फेसबुक चला के? 12th के बाद भी वही करोगे और क्या? 12th के बाद भी वही करोगे तो 2 साल छोड़ दोगे, कुछ नहीं होगा। मेरे पास भी बिल्कुल, था फोन में, मेरे को पता है मेरा फोन सिर्फ कॉलिंग के अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं हुआ 2 साल। बिल्कुल, मैं इतनी बिल्कुल। ज्यादा फोकस थी कि हाँ मुझे करना है। तो मतलब फोकस्ड होना और प्लानिंग करना दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम टीचर्स के पास जाओ, वो तुम्हें बेस्ट गाइड करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हर तरह के बच्चे देखे हैं, वो खुद भी इस फेज से निकले हैं, तो उनको पता होगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत आ रही है या किसी को बहुत अच्छा समझ आ रहा है, बस अप्लाई नहीं कर पा रहा, कुछ भी है, मतलब हर बंदे का अलग मेंटल लेवल होगा, तो तुम्हारे टीचर्स उस अकॉर्डिंगली तुम्हें बेस्ट गाइड कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम हर चीज टीचर से डिस्कस करो, जो भी दिक्कत है, जो भी आ रही है, जस्ट टॉक टू टीचर्स, ओके? और मतलब ठीक है बहुत सारे लो पॉइंट्स आएंगे, कभी लगेगा नहीं हो रहा है या जो भी है, अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। पहले तो गलती एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है, उसके बाद उसको उसको इम्प्रूव कैसे करना है। अब ठीक है टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ये क्वालिटी बहुत बहुत कम लोगों में होती है कि वो लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि गलती क्या हो रही है। तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, हो सकता है तुम्हारी स्पीड नहीं बन रही है, हो सकता है तुम्हारी सिर्फ टेस्ट के टाइम नर्वस हो जा रहे हो, तुम घर पे जा कर रहे हो तुमसे हो जा रहा है, बहुत बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो नए नोट्स उठा लिए, अच्छा मैं ये भी पढ़ लेता हूँ या फिर मैं ये भी कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पहले तो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब कहाँ गलती हो रही है। अगर अगर बिल्कुल, तुम वो चीज रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो फिर ही तुम एक डायरेक्शन में सोच पाओगे, समझो? तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो अपनी गलती रिकॉग्नाइज करो और उस पर फिर आगे वर्क करो। और अगेन अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ आ रही है, टीचर से बात करना तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब नहीं समझ आ रहा क्या दिक्कत है, टीचर्स के पास चले जाओ। मैं तो बैठी रहती थी डिस्कस करने, अच्छा ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो वो लोग बेस्ट गाइड करेंगे तुम्हें। और मतलब बेसिक्स बेसिक्स आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होगा तुम्हारे लिए। तो ऐसा मत करना कि
जैसे जेई एडवांस का पेपर उठा लिया सीधा और करने बैठे हैं, ठीक है मेरा हो रहा है, अरे मेरा हो नहीं रहा है, लेवल वाइज बढ़ना आगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहेगा, वो जेई में भी वही रहेगा, बोर्ड में भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पहले तो तुम्हारा होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्लास में जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से, तुम्हें आगे पीछे सब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आस्क करो, खुद से आस्क करो। और एक एक बहुत अच्छा तरीका होगा, फ्रेंड सर्कल बनाओ और एक दूसरे को समझाने बैठ जाओ। तो समझाने से हम बहुत ज्यादा समझते हैं एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, आपस में डिस्कस करो चीजें, सर से जाके डिस्कस करो, मतलब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो बेस से स्टार्ट करना, ऐसा नहीं कि सीधा बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे हो और फिर तुम डिप्रेस हो जा रहे हो कि नहीं मेरे से हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर आसान वाले हो रहे हैं फिर उस पे बढ़ो, आसान थोड़े आसान करो, फिर थोड़े मुश्किल करो, फिर थोड़े मुश्किल करो, ऐसे सीधा जंप मत करना। हमने ये करने की कोशिश की थी और इसीलिए हमारा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रुइन हो गया था। मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम 11th में जहाँ जाते थे, तो अब हमारे दिमाग में किसी ने घुसा दिया, मतलब इधर उधर से बातें करनी, बच्चों से डिस्कस करना, सुनना थोड़ा थोड़ा कि हाँ वो ना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ठीक है, अब वो हमारे दिमाग में घुस गया था। तो होता क्या है कि साइकोलॉजिकल होता है वो। अब हमें लग रहा था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इधर से नोट्स इकट्ठे करें, उधर से नोट्स इकट्ठे करें, वीडियोस ढूंढे, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करा, ट्यूशन चेंज करी +1 में +2 में जाके, फिर वो जहाँ चेंज करी वो भी छोड़ा, फिर वापस वहीं आ गए जहाँ पहले थे। और जब वापस वहां आए तो जाके रियलाइज हुआ कि ठीक ही पढ़ा रहे थे, वो हमारे दिमाग में घुसा हुआ था। बिल्कुल गलत घुसा हुआ था, गलत चीज पे टाइप हाँ वही वही, मतलब गलत चीज पे टाइम वेस्ट किया। और मतलब ये साइकोलॉजिकल इतना ज्यादा होता है, हमें इधर उधर की चीजें देख के बहुत लगता है अरे वो एलन में है, वो कोटा में है, उनको पता नहीं कौन सी ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं कि उनके इतने नंबर है। कुछ नहीं पढ़ा रहे, मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगा, 1+1 2 ही रहेगा। बिल्कुल। बोर्ड में लिखो, कहीं भी लिखो, मतलब और अगर तुम्हारा मैथ्स। स्टैंडर्ड मटेरियल कवर हो रहा है तो आई थिंक फिर डरने की जरूरत है ही नहीं तुम्हें। एग्जैक्टली मतलब तुम्हें सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और उसका ये है कि क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलो हो गया छोड़ दिया, उसको देखो, मतलब अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए उसके आसपास का भी क्वेश्चन दोबारा अगर तुम्हें दिख जाए तो ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारे से नहीं सॉल्व हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब तुमने पहले का ढंग से नहीं समझा। तो लाइक मतलब ये बहुत साइकोलॉजिकल होता है बच्चों में कि हाँ वहां पे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इधर क्या पढ़ा रहे हैं, हम शायद कम पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, मेरे पास इतने नोट्स, इतनी जगह के नोट्स और वीडियोस, पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा जो मैंने देखे भी नहीं है। मतलब मैं गिना भी नहीं सकती कितने इंस्टीट्यूट के और क्या क्या होगा मेरे पास जो मैंने खोले भी नहीं है। लिटरली किताबें कितनी होंगी मेरे पास, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तुम थ्योरी तो थ्योरी रहेगी, बस प्रैक्टिस के लिए है कि तुम्हें अलग अलग, ठीक है वो जितनी कर लो, पर पहले तुम्हारा थ्योरी पे स्ट्रॉन्ग हैंड होगा तभी तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे और फिर तुम डिप्रेस हो जाओगे कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब एक तो इधर उधर से ट्रैक मत हो ना, जो तुम कर रहे हो लेवल वाइज अपने हिसाब से देखो। तुम अगर तुमसे आसानी क्वेश्चन नहीं हो तो तुम जेई के क्वेश्चन करके क्या करोगे, वो भी नहीं होंगे। तो लेवल वाइज आगे आगे बढ़ना, और हाँ शुरू में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा लगाया था, मुझे याद है। ऐसा नहीं होगा कि, हो सकता है जैसे कोई सब्जेक्ट में तुम्हारा हैंड बहुत स्ट्रांग होगा तो तुम्हें जल्दी क्लिक कर जाए, पर कई में हो सकता है ना हो, तो उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। और तुम्हारा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगेन 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। जो तुम्हारे स्ट्रांग है ऑब्वियसली उनको इतना अच्छा कर लो कि हाँ मतलब उनमें से गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा भी क्या मतलब, एट द एंड पॉइंट इज तुम सीख रहे हो, तो जितना अच्छा कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा वो होना चाहिए तो क्वेश्चन तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे। तो लाइक हाँ, तो एक तो ये, और दूसरा अगेन शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो, उससे ये होता है कि रिवाइज, क्योंकि
एट द एंड तुम बहुत सारा पढ़ लोगे पर तुम्हें याद ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा। तो जैसे अब तुम +1 में मान लो तुमने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन एट द एंड तुम्हें +2 के जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद तुम्हें वो चीज रिवाइज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो भूल ही जाओगे सब कुछ। ऑब्वियसली 2 साल ऐसे याद रहेगी एक ही चीज। तो उसके लिए बेस्ट है कि शॉर्ट नोट्स बना लो, और जब भी टाइम मिलता है बस एक बार गो थ्रू कर लो फॉर्मूलाज और जो भी कॉन्सेप्ट्स है जो इम्पोर्टेंट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो। अगेन मतलब डिस्कस करने में बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है डिस्कस करने से। जब हम दूसरे को एक्चुअली समझा रहे होते हैं ना, तो तब एक्चुअली हमें रियलाइज होता है कि हमें कितना आता है। तो खुद ही मतलब कोई नहीं भी मिलता तो अकेले ही बैठ के करते रहो, खुद को ही समझा लो। मैं भी करती थी ये, लिटरली खुद को समझाओ बैठ के कि हाँ ये ऐसे होते हैं, नहीं ये ऐसा होता है। तो अगेन मतलब जो कुछ कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड तुम सीख रहे हो, तो एक तो ये मत लाना, ईगो वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि नहीं हो रहा है या जो भी है, जो भरनीत ने बोला। और प्लानिंग और मोटिवेशन होना बहुत है। लाइक मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि मैं दिन में कितना 6-7 घंटा सोती थी, जबकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं 10 तक 15 घंटे सोती थी। तो वो उसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए। ऑब्वियसली अब गेम खेलना ये सब सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं मजा आता है ऑब्वियसली। बट ये सोचो कि इसके लिए तुम्हारे पास पूरी लाइफ पड़ी है, तो अभी बस तुम्हें आगे जाके रियलाइज होगा कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो अभी बस सीरियस हो जाओ, और जितनी जल्दी तुम लोग स्टार्ट कर दोगे ना, तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। मतलब क्या ठीक है, कई लोग होते हैं 10th से 9th से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग अपना देखो, बस ये देखो कि एट द एंड ऑफ डे तुम्हें ये दिखना चाहिए कि हाँ मैंने आज क्या नया सीखा है या मेरा क्या ग्रोथ हुआ है। एट द एंड ऑफ वीक तुम्हें ये चीज देखना चाहिए। और मतलब हाँ, और ये चीज मत रखना कि हाँ किसी पे एहसान कर रहे हो। सीरियसली ये बहुत बच्चों का क्योंकि होता है कि उनको लगता है कि पता नहीं बस स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स ने भेज दिया, ट्यूशन जा रहे हैं, रख ली, सब रखते हैं तो हमने भी रख ली। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो। और अगर तुम अपने लिए अगेन अपने लिए नहीं करोगे तो कौन ही तुम्हारे लिए करेगा, क्यों करेगा कोई तुम्हारे लिए। तो मतलब हाँ दैट्स इट। तो ठीक है, एक चीज मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब बर्डन वगैरह या एफर्ट वगैरह काफी ओवरवेलमिंग लग सकता है एट सम हाँ पॉइंट, पर बात ये कि अगर तुम कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दोगे तो कुछ नया सीखने को मिलता है एंड वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है एंड इंटरेस्ट बना रहता है। लाइक अगर हम गेम्स वगैरह भी खेलते हैं तो इसीलिए होता है कि हाँ भाई उधर से बोर हो गए तो खेल रहे हैं कुछ भी है। बट अगर एग्जैक्टली। मतलब सिर्फ क्वेश्चन मत सॉल्व करते रहो, थ्योरी पढ़ने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करोगे तो कई इंटरकनेक्टेड होती हैं कई चीजें, काफी मैथ्स में, फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में। तो वो जब कनेक्शन आता है तो मतलब खुशी सी भी होती है खुद को भी, और तुम्हारा इंटरेस्ट एग्जैक्टली, भी बनेगा। तुम इंटरेस्ट से एक करोगे तो तरफ फील ऐसा नहीं होना करोगे। चाहिए कि यही तुम्हें गेम लग रहा है, कि तुम्हें बिल्कुल मजा आ रहा है ये चीज करने में। बिल्कुल, वो जो लर्निंग का क्रेज होता है ना वो मेंटेन होना एग्जैक्टली चाहिए। और मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब एग्जैक्टली चीजें स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो अपने आप ही वो लर्निंग का जो क्रेज है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, अपने आप डेवलप हो जाएगा। और मतलब एक चीज होती है 12th में बहुत बार लोज हाइज आएंगे, प्रेशर पॉइंट्स आते हैं, तो उस प्रेशर को रिलीज करते रहना कहीं ना कहीं जाके, वो बहुत जरूरी। उसको मतलब सर में जमा मत करना, बेस्ट है कि टीचर्स के साथ जाके डिस्कस कर लो, क्योंकि अगेन उन्होंने हर तरह के बच्चे देखे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ बच्चे कैसी गलती कर सकते हैं, तुमसे बेटर पता है उनको। तो इट्स मतलब ये बेस्ट कि तुम लोग साइकोलॉजिकल उनसे जाके। फर्क डाल देता है एक ना पर्टिकुलर, एग्जैक्टली ठीक है ना। हमारी लर्निंग के अंदर, हमारे प्रॉपर ट्रैक के अंदर ये फर्क डाल सकता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनल एम है उससे हम भटक सकते हैं अगर हमने ये चीजें डिस्कस ना की, एग्जैक्टली, ये प्रेशर हो पॉइंट ना सकता है, रिलीज बहुत किया। बार हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि टीचर से जाके डिस्कस करो मतलब। राइट राइट राइट।
तो आई थिंक मेन पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, राइट। तो एम होना जरूरी है, एम के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है, राइट। बड़े एम के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट। एंड अपने एम की तरफ फोकसली बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा हूँ तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये चीजें रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देना, राइट, रेदर देन कि मैं ये सोचूं कि मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो टीचर पे भरोसा रखो एंड उनके साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, जो वो करवा रहे हैं उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर अपना टाइम लगाने की कोशिश करो, राइट। एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि वो रिवीजन के अंदर तुम्हारी हेल्प करें, राइट। तो अगर ये चीजों का ध्यान रखोगे, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़िया रखो, प्लस जो मर्जी हो जाए चीटिंग नहीं करनी है, जो मर्जी हो जाए चीटिंग नहीं करनी, जो मर्जी टेस्ट हो। मतलब चीटिंग हुए तब भी करोगे ना जब तुम्हें नंबरों का वो होगा कि मुझे नंबर चाहिए दिखाने के लिए, पता नहीं किसको दिखाने के लिए, सर को दिखाने हैं, मम्मी पापा को दिखाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो चीटिंग तो कभी भी नहीं करनी, ना ऑब्जेक्टिव में ना सब्जेक्टिव में, स्कूल लेवल किसी, क्योंकि स्कूल लेवल अगर आएगा तो ही तो जाके हमारा कॉम्पिटिटिव का बेस बनेगा ना, तो क्योंकि वही तो बेस होता है हमारा, राइट, वही तो बेस होता है हमारा। तो स्कूल लेवल के अंदर कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, स्कूल में बस थोड़ा सीधे से पूछेंगे, जेई में थोड़ा टेढ़ा करके पूछ लेंगे, बिल्कुल लेकिन रहेगा वही। कॉन्सेप्ट को अपने से नीचे मत मानो बस, ये मतलब स्कूल का क्या है, हो जाएगा। मैं तो ये बबनीत ने बहुत बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। मतलब पता नहीं कब कौन ले जाए, तो ध्यान से होना। ठीक 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 है। तो हाँ जी, तुम्हारे पास ये जो कोरोना का टाइम है, ये तो मतलब चांदी सोना जो भी ले लो, बट इसको वेस्ट मत करना सीरियसली, क्योंकि बाकी तुम्हारे लिए यू आर गेटिंग द राइट एजुकेशन घर पे बैठे बैठे, राइट। उसका भी अगर हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, राइट, तो सीरियसली, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो बच्चों को इतना होता है स्कूल से छुट्टी लेनी है, ट्यूशन जाने आने में कितना टाइम लगता है। मेरी 3 अलग अलग जगह होती थी और अलग अलग टाइम पे होती थी, तो 10 मिनट आना जाना हर ट्यूशन पे, सोचो आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। वो भी प्रॉपर गर्मी में, ये प्रॉपर आराम से घर बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तुम लोग एसी में। ये टाइम तो मतलब चांदी ले लो, तुम्हें खुश होना चाहिए। कोरोना हो गया, पढ़ लो बैठ के ये टाइम पे जितना पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि नॉट एवरीवन, हमारे टाइम पे होता, मैं तो क्या खुश हुई होती, मतलब क्या ही खुशी हुई होती यार, कितना टाइम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसी मेंटालिटी सिर्फ अभी रख लो, बाद में मत रखना। हाँ, बाद में मत रखना, अभी रख लो 2 साल। सेल्फिश हो जाओ, अपने लिए पढ़ लो, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोई कुछ पूछना चाहता है अभी? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर चीज तंग कर रही है, नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज इनसे पूछो कोई भी चीज। हाँ जी, एनीवन? एक सेकंड मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सबको आवाज आ रही है? Right. कुछ समझ आया अभी? क्या समझाने की कोशिश की इन लोगों ने? यस सर। राइट, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये सबसे बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। जितने पढ़ सकते हो, जितने पढ़ सकते हो, जितनी औकात है ना भाई सूर्यांश, उतने 9 to 5 जॉब मान लो इसको। 9 to 5 जॉब मान लो। 9 to 5 नहीं, तुम जितने पढ़ सकते हो, जितने पढ़ सकते हो। अगर मान ले सूर्यांश, मैं एक सेकंड निष्ठा, अगर मान ले सूर्यांश कि आज को तेरी कैपेसिटी है 1 आवर पढ़ने की 1 सिटिंग में, राइट, तो कल को अगर तेरे को तेरी ग्रोथ करनी है, औकात बढ़ानी है, तो उस 1 आवर को 1.5 आवर, 2 आवर्स, 2.5 आवर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना कि अगर मान लो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई 9 घंटे पढ़ना है, राइट, तो भाई 9 घंटे बैठ ही नहीं पाएगा। आज को हमारा कैलिबर ही नहीं है 9 घंटे बैठने का। तो फर्स्टली यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन कैलिबर, राइट, कि आज की डेट में मैं कितना बैठ सकता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली अगर पूछो, अल्टीमेटली 12th एंड तक तो हमें ये चीज, 12th मिड तक ये मान लो हमें पहुंचना है कि मिनिमम 2.5 आवर्स तो पर सब्जेक्ट हमें डेली करना ही करना है। जहां दैट इज आवर मोटिव कि अल्टीमेटली वहां तक तो पहुंचना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो 11th में 8th लेवल पे पहुंच जाते हैं, राइट,
क्योंकि वहां पे हमें जेई का जो एग्जाम देना है वो 3 आवर्स का देना है, तो वहां पर भी 3 आवर्स का प्रॉपर कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए, राइट। तो वही चीज अगर हम घर बैठ के प्रैक्टिस के अंदर कर रहे हैं तो वहां पे बहुत इजी हो जाएगा। सो कहने का मतलब है कि अल्टीमेट मोटिव हमारा ये चीज है कि 2.5 3 आवर्स के अंदर हमारा फाइनल एम होना चाहिए पर सब्जेक्ट पर डे करना। दैट मींस ओवरऑल देखोगे तो 7 to 8 9 आवर्स तो हमें हमारा सेल्फ स्टडी होना चाहिए एक्सेप्ट ट्यूशंस, ये होना चाहिए, ठीक। हाँ, अच्छा, एक्सेप्ट ट्यूशंस। एग्जैक्टली आज की काफी लोग ट्यूशन को इंक्लूड कर देते हैं। नहीं एक्सेप्ट ट्यूशंस, ठीक है। और आज की डेट में कितना है, अब वहां तक कैसे पहुंचोगे, ये हमारा मेन एम होना चाहिए, यहाँ पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। तो ये मत सोचो कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करो एंड फाइनली फिर उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। डोंट से कि हमें 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसा पढ़ना चाहिए, औकात को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, जितना ज्यादा बैठ सकते हो बैठो, जितना ज्यादा। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक बुक थी अभी 3 इयर्स पहले मैंने पढ़ी थी, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी, इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ, ज़ीनोस पैराडॉक्स नाम की बुक है। ये फिजिक्स के रिलेटेड है, फिजिक्स कहाँ से कैसे आई, मैथ्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, राइट, उसकी अभी तक की रिसेंट जो डिस्कवरीज है वो क्या है। बैठने को तो मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, राइट, मेरी कैपेसिटी आज की डेट में 2-2.5 घंटे बैठने की है, लगातार मैं कंटिन्यूसली बैठ सकता हूँ 2-2.5 घंटे विदाउट डिस्टर्बेंस, राइट। लेकिन उस बुक को करने के लिए मैं ओवर द नाइट, जब मैंने वो बुक पकड़ी, स्टार्ट की, रात कब गई कब नहीं की, पूरी बुक खत्म करके मैं तब उठा, सुबह आई थिंक 6-7 बजे थे जब मैंने वो बुक कंप्लीट की। तो इट्स लाइक कि तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि तुम कितना घंटा बैठोगे। अगर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है, भाई सीरियसली बता रहा हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने स्टडी टेबल पे पता भी नहीं चलेगा, अपने टेबल पे बैठे रहोगे, मम्मी ने कब दूध ला के साइड में रखा, दूध कब ठंडा हो गया, मम्मी ने फिर गालियां दी कि तूने दूध क्यों नहीं पिया, ये पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इंटरेस्ट होना, तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यही चीज है कि हमारे सब्जेक्ट में नियत अच्छी होनी चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यस हमें ये चीज करनी है, इंटेंशन होनी चाहिए। पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि क्यों पढ़ने बैठ गए, हाय, मतलब ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए कि पढ़ रहे हो तुम, हाँ मजा आएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो वो चीज कभी मत छोड़ना। तो भाई सुरेश, चीजें समझ, इंटरेस्ट अगर आएगा सब्जेक्ट में तो अपने आप ही स्टडी का टाइम बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे सर ने बोला कि 12th मिड तक जो भी 2.5 2 आवर, वो भी ऐसा मार्क मत लेके चलना कि 12th मिड तक ही करना है, जितना जल्दी कर सकते हो उसको। बिल्कुल, कई बच्चे तो 11th में कर लेते हैं, बिल्कुल वो उन्होंने मैक्स टू मैक्स बोला कि 12th मिड तक तो होना ही चाहिए, उससे पहले जितना जल्दी कर सकते हो हो जाए तो ज्यादा। मैं अपना ही बता रही हूँ, मेरी 15 घंटे सोने की औकात थी, मैं 7 घंटे पे लेके आई हूँ। तो नियत होगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो, बस नियत मत छोड़ना यार। नियत बनाने के लिए भी सिंपल सी बात है कि तुम कुछ नया सीखोगे तो तुम्हारी खुद की पर्सनल ग्रोथ है, तुम सीरियसली क्या करने क्या आए हो यहाँ पे, मतलब दुनिया में क्या करने आए हो, मेरे को जो गोल है हमारा जिंदगी में क्या गोल है, कुछ सीखना है, राइट। और कुछ सीखोगे तो एक साइड बेनिफिट ये भी है कि कुछ बात करने को भी होगा किसी के साथ, अपार्ट फ्रॉम कि तूने पबजी खेला कि नहीं खेला, तूने कितने बैटल। कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है, किसी से डिस्कस करना वो बहुत ही मतलब हेवनली फीलिंग कह लो वो होती है। तो कुछ नया सीखना की नियत बनाने के लिए मतलब तुम्हें खुद ही कोशिश अच्छे से करनी पड़ेगी, कोई और आगे बना के नहीं देगा तुम्हें, या किसी और की नियत से तुम काम नहीं कर सकते। तो कोशिश मतलब किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें थोड़ा ग्रे एरिया पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर मतलब कोशिश करो स्टिल। अगर एट सम पॉइंट तुम्हें लगता है कि हाँ दिस इज नॉट समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, तो इट्स ओके टू चेंज। और औकात सबकी होती है, ऐसा नहीं औकात नहीं होती, औकात सबकी है। अगर राइट डायरेक्शन में ये तो मत ही सोचना कि मुझसे नहीं होगा, या जनरली दोस्त बोल देते हैं कि यार नहीं यार ये हमसे नहीं हो सकता, राइट, ये तुमसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई बच्चा सब कुछ कर सकता है अगर राइट डायरेक्शन में हम अगर स्टेप्स लेंगे, और उसके लिए टीचर से बात करना बहुत जरूरी है, वही राइट डायरेक्शन तुम्हें बता सकता है, ठीक है। क्रश, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, कोई और क्वेश्चन किसी का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोल। हाँ जी सर, अगर मान लो आईआईटी में जाना है या आईजर में जाना है, उसके लिए क्या ट्रैक होना चाहिए, उसके लिए क्या कौन सा ट्रैक होता है, कैसे जाना है वहाँ पे? अच्छा, बेसिकली एडमिशन के लिए, राइट।
राइट राइट राइट। बवनीत, आइजर में एडमिशन के लिए क्या कैसे कैसे जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं? आइजर में एडमिशन के 3 राउट हैं, एक केवीपीवाई, एक जेई एडवांस एंड बिल्कुल एक मतलब उनका खुद का टेस्ट होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। राइट तो केवीपीवाई तुम +1 में दे दो, +1 जब मर्जी दो, उसमें जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे तुम्हें कोई ना कोई आइजर मिल सकता है। नहीं भी मिला अगर बहुत ही बुरा है तो मतलब द थिंग इज कि वो एक राउट है उसके लिए। राइट एंड एक होता है कि जेई एडवांस में अंडर 10,000 आया तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें सीट मिल सकती है। अभी राइट थोड़ा बढ़ गया कंपटीशन, पहले तो 3-4 हजार पे आइजर पुणे भी मिल जाता था। राइट बट तुम आइजर को अगर आपस में जज करना चाहते हो तो उनके डिपार्टमेंट देखना, पहले कौन बना है बाद में कौन बना है इस पे मत जज करना। जैसे आइजर मोहाली जो है उसका बायो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मतलब तुम इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हो। आइजर कोलकाता का फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से जज करो कि तुम्हें कौन सा सेट बैठ सकता है। आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, ये तीनों के लिए मतलब इवन जो लोएस्ट रैंक मतलब जो हाईएस्ट रैंक जो हमारे आइजर मोहाली में अभी है दैट इज 600 समथिंग। ओके तो कुछ फिक्स नहीं है कि कितना है, बट अंडर 10,000 है तो तुम्हें पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई आइजर मिल सकता है। नेक्स्ट इज कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो जनरली होता है बोर्ड के मार्क्स के बेसिस के बाद, मतलब बोर्ड के मार्क्स जब रिलीज होते हैं तो एक कट ऑफ आती है, फिर उसके बेसिस पे तुम वो टेस्ट दे सकते हो। एंड देन उसके रैंक वगैरह निकलते हैं, मतलब वो होता है उसकी वो चारों सब्जेक्ट तुम्हारे टेस्ट करते हैं पीसीएमबी। बट टेंशन वाली बात नहीं है, अगर तुम बायो नहीं भी आती तो मत अटेम्प्ट करो, तुम फिर भी अच्छा एग्जैक्टली। एग्जाम आई दे थिंक सकते अरमान का ना ये भी एक पॉइंट था कि उसको उसका मेन एम है आइजर में जाना, एंड उसने अभी बायो रख ली साथ में हो। ओके, जस्ट बट बिकॉज कि अरमान, आइजर में आती है। हाँ जी अरमान सर। उसको एज ए इंटरेस्ट अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो नॉट अ प्रॉब्लम, पर उसको इतना स्ट्रेस मत दो, बिकॉज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट अगर देना है तो उसमें बायो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब काफी बच्चे हैं जिनके बायो में -2 भी आए हैं, बट फिर भी वो कई आइजर पुणे में बैठे, कई आइजर मोहाली में बैठे हैं, तो उसको मत अटेम्प्ट करो कोई नहीं, बट अपना पीसीबी जो पीसीएम है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अच्छा कर सकते हो। एंड हाँ मतलब अगर तुम्हारी जेई के लिए अच्छी तैयारी है तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा जी। मतलब हाँ मैंने जी भी दिया था, मेरी थोड़ी गलती हो गई थी उस वक्त तो। एंड मतलब हाँ, अगर जेई की अच्छी तैयारी कर लोगे, वो बेसिकली ऐसे होता है कि जेई एडवांस एंड जेई मेंस के बीच का लेवल है, पर टाइम जेई एडवांस वाला होता है उसमें। राइट राइट। हाँ जी। ठीक है सर अरमान, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट है कि देयर आर 3 वेज। एक है आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट, एक है केवीपीवाई, एक है जेई एडवांस। ठीक है, इन तीनों के थ्रू जा सकते हो। और जो बायो चाहिए वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ आइजर के एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें से चाहिए। उसमें भी अगर बायो नहीं अटेम्प्ट करोगे और बाकी के ऊपर ध्यान दोगे तो आई थिंक इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी डेफिनेटली इजीली हो सकता है, बस काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ अटेम्प्ट नहीं किया, बायो अटेम्प्ट किया तो हो गया, और जिन अभी मतलब हाँ जो बिल्कुल। एक पर्टिकुलर फील्ड के थे राइट। सर तो इतना हाँ इशू जी नहीं है इसका। हाँ जी। सर एंड इंजीनियरिंग फॉरेन में ज्यादा बेटर है इंडिया में, मतलब कहाँ ज्यादा है? फॉरेन में क्या ये क्या देखा पता नहीं नहीं, इसके ऊपर एक्चुअली में तुम दोनों बता सकते हो। आई एक्चुअली। थिंक हाँ मतलब अच्छा। जो अच्छे आईआईटीज हैं, अगर तुम उनमें बीटेक करके, ठीक है, काफी लोग जाते हैं फॉरेन में, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि तुम सीधा 12th के बाद अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी लैंड कर पाओगे इन एनी वे। तो इट्स बेटर कि अभी तुम सिर्फ सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो कि तुम्हारा ये जो भी जेई है और आईआईटी का है। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है तो इन एनी वे आईआईटीज आर नो लेस देन एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। मतलब इनफैक्ट काफी फॉरेन के लोग यहाँ आते हैं हमारे आईआईटीज में, बिल्कुल मतलब पढ़ने के फॉरेन लिए एक्सचेंज के थ्रू आई स्टडी थिंक करने इसके के लिए। अंदर ना, आई थिंक इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि यू नो 12th के बाद जो तुम्हें फॉरेन में यूनिवर्सिटी मिलेगी, इन केस यू आर गोइंग फॉर द इंजीनियरिंग आफ्टर 12th इन द फॉरेन यूनिवर्सिटी, राइट, तो जो तुम्हें मिलेगी वो उनकी वहां की लोकल यूनिवर्सिटी होगी, नॉट दी गुड वन। गुड वन एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी में तुम नहीं जा सकते डायरेक्टली 12th, बहुत कम चांसेस है कि बहुत बुद्धवान कम चांसेस है। जाने का सीधा चांस होता है कि तुम, अब जैसे हम बीटेक में है तो हम प्रॉफ्स के अंडर कॉन्टैक्ट रखें और फिर प्रॉफ्स के थ्रू फॉरेन प्रॉफ्स को अप्रोच करें, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो इट ये वे होता है अच्छी बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जाने का। बिल्कुल। तो इट इज बेटर कि जनरली जो ट्रेंड रहता है वो ये है कि बीटेक यहाँ से करते हैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, देन एग्जैक्टली। आगे एमटेक वगैरह करने के लिए, एमएस करने के लिए यू कैन गो फॉर दी चूज दी फॉरेन। फॉरेन यूनिवर्सिटी, राइट। ये जनरल हमारा तरीका रहता है।
एक ना चीज होती है कि और रैंकिंग फॉरेन अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है आई गेस तभी जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस फॉरेन जाना है तो कहीं भी चले गए। यूनिवर्सिटी आई के डोंट थिंक बेसिस पे देखो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में मेरे को अगर इंजीनियरिंग मिल रही है तो मैं चला जाऊं, वो नहीं करना चाहिए, हाँ वो वही, नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। नहीं, उसके लिए भी ऐसा टेस्ट नहीं होता ना, जेई वगैरह, फॉरेन फॉरेन जेई, में ऐसे जाने के नहीं लिए होता है। जनरली एसएटी होता है, बस 60 दे दो। हाँ जी। सैट देना पड़ेगा, बिल्कुल सैट के बट स्कोर लगेंगे। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी जज करने के लिए हम यूजुअली क्या देखते हैं कि रैंक वगैरह देख लेते हैं, जो राइट राइट क्यूएस रैंकिंग वगैरह। राइट। बट उनके तुम पैरामीटर्स देखो पहले कि वो किस पैरामीटर्स पे एग्जैक्टली, वो जज करें यूनिवर्सिटी को। वो इस एज में आई डोंट थिंक भाई कि ये जज कर तुम्हें पाएंगे वो फॉरेन चीज। का नहीं, द थिंग इज सोचना कि कई चाहिए। यूनिवर्सिटीज का अलग पर्सपेक्टिव, मतलब जैसे क्या रैंक है, नर्व रैंकिंग जो है अभी, हम्म। उसमें क्या होता है कि वो डाइवर्सिटी ज्यादा देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास, तो उस बेसिस पे कौन कई सी, बार ऊपर हो जाता है। कौन सी रैंकिंग? नर्व एनआईएस, रैंकिंग, एनआईआरएफ। ओके ओके ओके, तो एनआईआरएफ। प्रॉब्लम ये कि तुम्हें अभी जो बीटेक करना है या बीएससी जो भी करना है, तो तुम्हारा मेन फोकस है कि तुम्हें ये देखना है कि उनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कैसा है। राइट। अगर तुम बड़ी किसी हॉटशॉट यूनिवर्सिटी में चले गए कि हाँ भाई वहाँ पे प्रोफेसर बहुत सही हैं, और उनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अच्छा नहीं है, जैसे मतलब एक्चुअल कंपैरिजन है कि मतलब कई बार आईएससी के कई बच्चों से बात की, डाइजर के कई बच्चों से बात की, एंड आईएससी का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है बीएससी में, जो रिसर्च में है, बीटेक का आई डोंट नो, बीएससी में उनका रिलेटिवली नया है, तो इट्स नॉट दैट डेवलप्ड एज कम्पेयर टू आईएससी। तो जनरली लोग सोच लेते हैं कि हाँ आईएससी पुराना यूनिवर्सिटी है एंड इट्स वेरी नाइन, मतलब जो भी उसका जो हॉटशॉट जो भी है, हाँ तो उस बेसिस पे चले जाते हैं। बट योर फोकस है कि तुम्हें अंडरग्रेड अच्छी स्टडी चाहिए तुम्हें एट दिस पॉइंट। तो उस हिसाब से देखो कि मतलब कोरा पे काफी बच्चे होते हैं, मतलब तुम उनसे राइट राइट डायरेक्टली राइट। भी बात कर सकते हो, पर वो बात की बात है, पहले रैंक पे सब कुछ देखो, फिर तुम डिसाइड कर सकते हो। जब नहीं तुम्हें ये प्रायोरिटी लिस्ट अपनी भरनी है ना, तब तुम डिसाइड करो कि बात करो लोगों से कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे ट्राई प्रॉपर देख के यूनिवर्सिटी का प्रॉपरली स्टडी करके, आई थिंक सूर्यांश तभी हमें ऑप्ट करना चाहिए, डायरेक्टली ऑप्ट नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ऑप्ट नहीं करना चाहिए। और एक मतलब ये बहुत ही सोशल इशू है काइंड ऑफ, कि मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज में, मतलब इवन जैसे पीएचडी वगैरह भी कई बार जाते हैं, तो दे यूजुअली रिटर्न बैक टू इंडिया। मतलब उनका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे एशियंस के साथ कई बार काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हाँ हमारी मेंटल हेल्थ की भी वो नहीं चलो वो तो एक वो तो फिर हमारा जो प्लेस को हम चूज करें उसके लिए प्रॉपरली स्टडी वगैरह करना पड़ेगा कि वहाँ पे इश्यूज वगैरह हाँ ऐसे हैं एग्जैक्टली। या नहीं है, हाँ, राइट? तो चलो दैट ऑलमोस्ट इज सब में है वैसे, पर राइट एनीवे मतलब तुम अगर यहाँ पे तुम्हें अच्छा मिल रहा है, आईआईटी वगैरह मिल रहा है, एनआईटी मिल रहा है, तो आई गेस यहाँ पे करोगे तो इट्स मच बेटर। राइट। तो बाहर बीटेक में यहाँ भी से जब करके तुम्हारी फिर मेच्योरिटी आती है तो जाओ। मतलब एंड मोर ओवर अगर किसी को परमानेंटली बाहर नहीं जाना है और सिर्फ बाहर की बीटेक डिग्री है तो इट्स बेटर कि आईआईटी की, यहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है, मतलब बिल्कुल एक रिकॉग्नाइज्ड तो है ये ये। एग्जैक्टली। रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल बिल्कुल हाँ राइट। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है चलो खत्म करते हैं। हाँ जी प्रणव। लाइक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें? जनरेट करें? ओके, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें? कैसे? अच्छा, $1 million क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोग एक्चुअली में ये चीज समझ पाते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट कैसे जनरेट करें। देखो अगर मैं इस चीज को देखूं तो कोई भी नई चीज अगर मेरे को करनी है, मैं विदाउट इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तुम लोगों ने नॉन मेडिकल किया, विदाउट इंटरेस्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो तुमने ऑलरेडी इंटरेस्ट था, हल्का सा मन तो था, ठीक है, तो विदाउट इंटरेस्ट तो नहीं कर सकते। अब यार जिन चीजों को तुम टाइम डिवोट करते हो ना, उन चीजों में इंटरेस्ट आता ही आता है। देखो इंटरेस्ट बेसिकली तब आता है जब चीजों का हमें प्रोज एंड कॉन समझ में आना शुरू होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक समझ में आना शुरू होता है, कहाँ पे वो चीज बढ़िया है, कहाँ पे वो चीज मेरे को फायदा दे सकती है, कहाँ पे वो मेरे को नुकसान दे सकती है। जब ये चीजें मेरे को डीपली समझ में आनी शुरू होती है तो मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। जब वो चीजों को बेसिकली इंटरेस्ट तब आता है जब मैं एक चीज को समझना शुरू कर देता हूँ, बहुत अच्छे से डीपली समझना शुरू कर देता हूँ, तब जाके मेरा इंटरेस्ट आना शुरू होता है। तो प्रणव, इंटरेस्ट लाने का सिर्फ यही तरीका है कि चीजों को डीपली समझना पड़ेगा, और चीजों को डीपली समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद की तरफ से
एफर्ट डाल के टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और टाइम डिवोट करके फिर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट योर ओन लेवल, फिर टीचर को पकड़ो कि सर नहीं मेरे को ये समझाओ, पीछे पड़ जाओ, राइट, कि नहीं सर मेरे को ये समझाओ, मेरे को इंटरेस्ट लाना, मेरे को करना ही करना, जो मर्जी होता है, राइट। तो खुद की तरफ से पहला एफर्ट तुम्हारा खुद की तरफ से होना चाहिए कि ये उस चीज को समझने की तुम कोशिश कर रहे हो, टाइम डिवोट कर रहे हो विद इन अ मंथ। ये इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा कि आज मैंने एफर्ट लगाया तो कल समझ आना, मतलब सॉरी आज मैंने एफर्ट लगाया तो कल इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम, 15 डेज, 20 डेज, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, एफर्ट कंटिन्यूसली लगाते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब तुम्हें एक्चुअली में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार अब ये चीज तो करनी ही करनी है। बट ये स्टार्टिंग में तुम्हें खुद ये विदाउट सोचे कि वो किस तरीके से तुम्हें बेनिफिट वगैरह दे रही है, तुम्हें इंटरेस्ट से वो चीज करनी पड़ेगी, मन लगा के वो चीज करनी पड़ेगी, टाइम लगा के वो चीज करनी पड़ेगी। अपने आप धीरे धीरे करके जैसे वो चीजों को समझना शुरू कर दोगे, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, तो अपने आप ही इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आई होप प्रणव क्लियर हुआ। मतलब चीज ना समझ आना और इंटरेस्ट ना होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मतलब अगर तुम्हें चीज नहीं समझ आई उस पर टाइम, अगर समझ आने के बाद तुम्हें लगता है कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आई, या मुझे मतलब और पढ़ने का मन नहीं है, या जो भी है, दैट इज कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले चीज को टाइम लगाओ, समझो। तुम एक दिन में नहीं बोल सकते हैं, एक बार में पढ़ के नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मेरे को तो पसंद ही नहीं आया। टाइम देना पड़ेगा उसको। टाइम दो, उनको समझो, फिर देखो कि हाँ यार ये चीज कैसी है। टाइम देने के बावजूद भी लाइक समझ नहीं आता। नहीं भाई, फिर उसका मतलब ये है कि हम समझ ही नहीं रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं होता कि देखो भाई हम टाइम दे रहे हैं, देखो भाई एक चीज समझो, अगर मैंने एक चीज की और वो ना हुई तो इसका क्या कारण हो सकता है? या तो मैंने वो चीज गलत सीखी है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। दूसरा, या तो मैंने वो चीज सही सीखी है, मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। मतलब यही दो कारण हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो या तो तुमने गलत सीखा वो चीज इसलिए वो तुमसे नहीं हो पाया। देखो तुम्हारा मेन मोटिव तो यही है ना कि इंटरेस्ट लाना, और तुम बोल रहे हो कि टाइम डिवोट किया स्टिल इंटरेस्ट नहीं आया, राइट। तो इसका मतलब और कर नहीं पा रहे हो तुम वो चीज, राइट। देखो करने, अगर तुमसे वो चीज होनी शुरू हो जाएगी तो अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो तुमसे वो चीज हो नहीं रही है इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब वो हो क्यों नहीं रही है? या तो तुम गलत सीख रहे हो, राइट, या फिर तुम गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको, राइट। तो उसके लिए फोकस वगैरह, कंसंट्रेशन वगैरह, जिस कंसंट्रेशन से हम उस चीज को सीख रहे हैं वो चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, कल मैंने तेरे को एक चीज ऑब्जर्व करवाई थी कि जो मैं क्लास में बता रहा था डोमेन के रूल्स, और जो चीज तुम इंप्लीमेंट कर रहे थे वो दोनों में बहुत फर्क था, हाँ है ना? हाँ जी, राइट। तो यही चीज फर्क आती है। मैंने इम्प्लीमेंट नहीं नहीं, वो भी चीज इन्वॉल्व होती है भाई, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये चीज होती है कि मतलब बच्चे बस किताब खोल के बैठे रहते हैं, पता नहीं मतलब हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम वो चीज नहीं कर रहे होते। हम बस बैठ के किताब घूर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं। रीड करने में और समझने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये इन जनरल ह्यूमन साइकोलॉजिकल है। देखो तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुम अगर जीत रहे हो तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम हारने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं कर रही है। तो लाइक तो इसका मतलब तुम्हें अगर समझ आ रहा है तो तुम्हें इंटरेस्ट खुद से आएगा। और टाइम देना इट्स नॉट कि तुम किसी को दिखाने के लिए, अगेन मतलब तुम्हें टाइम देने का मतलब कैसे मतलब समझाऊं मैं? मतलब तुम इंटरेस्ट बना नहीं सकते, बट द थिंग इज कि अगर तुम्हें ऑलरेडी है तो समझने में एफर्ट लगा सकते हो। तुम एफर्ट अपना सिर्फ समझने में लगा सकते हो, तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं। बिल्कुल। तो पहले टाइम लगा के उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो और टाइम लगाओ, ठीक। हो सकता है हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक हो उसमें, इसलिए समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो और ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करो, राइट। तो टाइम लगाने के बाद जितना तुम थिंकिंग करोगे ना, तुम्हें अलग अलग एस्पेक्ट्स पता लगेंगे। और फिर बाद में अगर तुम्हें जैसे सर के पास भी जाते हो कि ठीक है नहीं हो रहा है, तो जब तुम्हें एक्चुअल रीजन पता लगेगा तो तब तुम काफी फैसिनेटिंग होता है कि हाँ अरे हाँ ये था, मैं क्या क्या सोच रहा था। एग्जैक्टली। हाँ, जब एक्चुअली चीजें समझ आती है बाद में, फिर पता चलता है कि नहीं मैं बहुत गलत समझ रहा था, अभी तक मैं कैसा समझ रहा था, राइट। तो फिर वो जाके एक्चुअली में पता चलता है कि नहीं मतलब चीजें कुछ और ही थी और मैं बहुत गलत तरीके से समझ रहा था। एक्चुअल चीज जब समझ में आती है, राइट। तो प्रणव कहने का मतलब सिर्फ यही है कि चीजों को समझने की कोशिश करो। इन केस अगर नहीं समझ में आ रही तो और टाइम लगाओ, या फिर टीचर को पकड़ो कि सर मेरे को दोबारा समझाओ, मेरे को इंटरेस्ट लाना है, जो मर्जी हो जाए,
मेरे को चीजें अच्छे से करनी है जो मर्जी होगा, राइट। तो जब तुम मतलब ये जो स्टेप लोगे खुद तो से टीचर करने का करेगा। जो फीलिंग होगा ना, जो खुद से करने का फीलिंग होता है, और जो जितना तुम टाइम लगाते हो और बाद में वो जो फैसिनेशन होता है कि अरे ये तो ये था, मैं क्या ही कर रहा था, वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। बिल्कुल। तो हाँ ठीक है प्रणव। हाँ ठीक ठीक, किसी मजे और से को कोई? पढ़ो यार, अभी टाइम है तुम्हारे पास, बिल्कुल मजे से पढ़ना इजीली चाहिए यार, काम करो। बिल्कुल। वही। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? सर हाँ जी। सर अगर आपका जैसे मोटिवेशन है, मतलब इंटरेस्ट भी है, बट कोई ऐसे मतलब कि कोई गोल नहीं है, बट तो फिर क्या करें? मोटिवेशन किस चीज का? फिर मोटिवेशन एक एम होता है, उसकी तरफ जाने का मोटिवेशन होता है ना। तो अगर एक इंटरेस्ट हो गया ना, एक टाइप का कि इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है, बट एक टाइप का आगे नहीं पता करना क्या, गोल नहीं है कोई। नहीं नहीं, फिर मोटिवेशन या इंटरेस्ट देखो फिर ऐसा है ना कि देखो, मैंने ये तुमसे आई थिंक पहले भी बात की थी, जरूर भवनीत ने भी स्टार्टिंग में बात की, जरूरी नहीं कि 12th एंड तक तुम्हारा गोल बन जाए या एम बन जाए, एग्जैक्टली। राइट। तो अभी फिर हमारा फिर एम क्या होना चाहिए कि जो भी चीज हम कर रहे हैं 11th-12th में वो अच्छे से करें। क्यों? क्योंकि वो जहां पर भी यूटिलाइज होगी, जहां पर भी उसको यूज करेंगे हम, राइट, ताकि वहां पे हम अच्छे से उसको यूज कर पाए। तो ये हमारा आगे मोटिव तुम होना जहां चाहिए। भी जाओगे ये तुम्हारा बेस होगा, लाइक बिल्कुल, ये बेस बनेगा ना, क्योंकि ये देखो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। जितना अच्छे से अभी कर रहे हो तुम्हें आगे फायदा होगा अब उतना ही। ये खुद सोचो ना, जो 10th तक की स्टडीज थी वो सारा का सारा 11th-12th का बेस है। अब 11th-12th का जितना भी स्टडीज होगा ये तुम्हारा आगे जाके जो कॉलेज लाइफ होगा उसका बेस होगा। कॉलेज में अच्छा करना है तो तुम्हें 11th-12th के अंदर अच्छा करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके आगे कर पाओगे ना। तो ये हमारा अभी अगर नहीं मोटिव है कोई भी, तो पहली बात तो नहीं मोटिव है, इट्स ओके, विद टाइम बन जाएगा मोटिव, ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मोटिव नहीं होता, लेकिन वो विद टाइम बन जाता है, इट्स ओके, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटली मोटिवलेस रहना है। हम शॉर्ट टर्म मोटिव भी बना सकते हैं कि ठीक है अभी हमारा मोटिव होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसको बहुत अच्छे से करें, उसको इंटरेस्ट से करें और एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश करें, ताकि जब भी वो चीजें आगे फ्यूचर में कभी काम आए तो उसको हम एकदम बढ़िया से करें। ये चीज हमारा मोटिव होना चाहिए, ठीक है अनीश? ठीक है, और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? चलो ठीक, काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, चलो खत्म करते हैं। एंड थैंक यू भवनीत एंड निष्ठा, गाइड करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अपना सारी स्ट्रगल्स वगैरह शेयर करने के लिए, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलो। अगर किसी को बाद में बात वगैरह करनी हो तो अपना मैं ग्रुप के अंदर तुम दोनों का कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा। इन केस अगर किसी को कोई बाद में बात करनी है, इंडिविजुअली इनसे बात करनी है, ठीक है, मैसेज पे, फोन पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।